Thank you, Rahul. Good evening, everyone. Um, Welcome you to the first episode of at least 8 for now, and depending on the response, hopefully we'll be organizing more episodes of Tech Fridays. As the name suggests, that we are focusing on technology. Um, so we have had certain initiatives at Vipka regarding technology. So we have had already a full day conference in association with EIRC, which was AI Accountant. Now, the purpose of these series is that we now know a lot of about AI in terms of theoretical, and so we have also implemented it to a certain level. But now the idea is that we have experts like Prabhav, we have experts like him and many other experts who have actually implemented it successfully at a certain level, and to learn and understand from them as to how we can implement AI in our day-to-day activities and improve our production as well as our deliverables to the client. Um, so I'm very happy that the committee has taken this initiative under Neeraj Agarwal, who is not here, and under the guidance of him, and Sumit and Rahul have done a great work in organizing this. Uh, I sincerely hope that all of you have a very enjoyable session today, and I hope to look forward to you in the next sections as well. Um, uh, so again, the focus remains not on AI speak, but on actually doing and implementing AI. So the recording of this session will be available on our YouTube channel. But if you have any questions, I would strongly encourage that you guys participate and ask Prabhav as many questions as you can. I'm sure we'll be more than happy to answer them. So thank you. And with this, I hand it back to Rahul. Thank you. Thank you, Rahul Bhaiya. Thank you for your kind words. May I kindly request CA Sumit Bihani, our today's co-chairman, for his remarks. Thank you, Rahul. I'll just quickly summarize that this is all about how we can build infrastructure with respect to technology at our office. And Prabhav would be the best person for today. He'll show you simple ways how you can automate stuff. And I have a small request with Prabhav that don't tell us कि GPT से ये हो सकता है. Please share few codes or few actionable so that हम कल से उसको use कर पाएं. और उसके बाद हम GPT से करवाएंगे और we'll thank you all across. So with this, Rahul, back to you. Thank you, Sumit Bhaiya. Thank you. Now as the time is pressing, so now I would like to shortly introduce our speaker for the day, CA Prabhav Kumar Agarwal. So Prabhav is a chartered accountant who is driven by a passion for leveraging technology and AI to enhance practices, account education, and shape the future of AI in accounting. So his educational profile is he is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India, and he is also a qualified company secretary. He is also diploma holder in IFRS. He is also diploma in information system audit, as well as he has also completed artificial intelligence level 1 course in 2024. Along with that, he is a partner in Ramesh Prabhav and Company. He is also guest faculty at Guwahati College of Commerce. He is also speaker and faculty for ICAI as well as ICSI. And he has many achievements and contributions in his bucket, which includes he has earned awards for his presentations at the National Convention for CA students held at Thiruvananthapuram, Indore, Raipur. And he is also participant in AI Hackathon S4 conducted on 29th of November 2024. Prabhav has also served as a secretary of the Guwahati branch of ICASA in year 2016. So along with this achievements and contributions, so we request our speaker for the day, Prabhav, to start his deliberations. Prabhav. Thank you so much, Rahul sir, for this warm introduction. I hope I'm audible and my screen is visible. एक बार just confirm कर दे start करने से पहले. Yeah, you are audible and visible. Okay, चलिए. तो आई थिंक सुमित सर ने जब शुरू किया तो पहले बॉल में मेरे को गूगली डाल दिया ये बोलते हुए कि चैट जीपीटी से कोड कैसे जनरेट करना है, हमको ये नहीं सीखना, हमको आप रियल लाइफ केसेस दीजिए. वेल चलिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा हम जितना हैंड्स ऑन इसको प्रैक्टिकल बना सके और कैसे इसको हम डील कर सके अपने डे टू डे ऑफिस के अंदर. थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप जैसे कि बताया गया कि आप क्वेश्चंस पूछते रहे बीच बीच में, मुझे जितना डिस्टर्ब करे मुझे अच्छा लगता है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पहले मैं एक जनरल डिस्कशन से स्टार्ट करता हूँ कि क्या लगता है ये जो एआई का इतना हाइप बना हुआ है,
एआई एआई एआई, चारों तरफ एआई एआई, इंस्टीट्यूट भी अब इतना पैशनेटली एआई जो है उसको पुश कर रहा है। तो एआई से क्या रेवोल्यूशन आने वाला है? एटलीस्ट हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से पहले हम अपने फील्ड के रिलेटेड ही बात करते हैं। मैं दूसरे बात लंबे चौड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं अपने और आपके ऑफिस से रिलेटेड बातें करता हूँ। क्या चेंज ये लेकर के आ सकता है हमारे ऑफिस लेवल पे, प्रैक्टिस लेवल पे? आई होप मैक्सिमम लोग आई बिलीव प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बिकॉज दिस वाज मेंट फॉर ऑडिट एंड ऑडिटिंग टूल्स यूजिंग एआई। तो क्या लगता है आपको कि क्या चेंजेस ये हमारे डे टू डे रोजमर्रा की प्रैक्टिस में क्या चेंज लेकर के आएगा? जस्ट एक कैजुअल डिस्कशन अगर हम करें स्टार्ट करने पे। जी, चैट पे आप बता सकते हैं, आप चाहे तो माइक भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर प्रोडक्टिविटी, टाइम कॉस्ट प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल, वेरी नाइस। और टाइम कॉस्ट प्रोडक्टिविटी, वर्क फास्टर, बिल्कुल सही। एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस, बेटर रिजल्ट्स, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। ऑटोमेशन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट। सो सभी को यू नो ये लगभग सही आपने कहा, बिल्कुल। ड्राफ्टिंग क्वालिटी, जी बिल्कुल सही। तो ये कई सारी चीजें हमारी इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा, एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, बेटर रिजल्ट, ये वो। मैं आज जिस प्रॉब्लम की बात करना चाह रहा हूँ, जो मेरे को बड़ा परेशान किया, लेटेस्ट रेगुलेशंस ऑन रियल टाइम, बिल्कुल 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 सर। जो मेरे को बड़ा परेशान किया और हम सबके फर्म में ये प्रॉब्लम रहेगा, वो ये रहता है कि आप स्टाफ को हायर करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, कुछ दिन आप उसको काम सिखाते हैं, और जब वो सीख के आपको अब लगता है कि ये बंदा रेडी है अब काम संभालने के लिए, बस उस समय उसका नोटिस आ जाता है कि सर मुझे बस, हम आपके हैं कौन हो जाते हैं वो, हम साथ साथ ऐसे हम आपके हैं कौन हो जाते हैं वो। कितने लोग इस प्रॉब्लम के साथ रिलेट करेंगे कि यार ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अट्रीशन जो है, स्टाफ ट्रेनिंग है, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और हम भी जो है रोजमर्रा की डे टू डे लाइफ में इतने मतलब, मैं जब ऑफिस में आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार 10 में से करीब करीब 7 या 8 काम बहुत ही रूल बेस्ड, रेपिटेटिव और अनप्रोडक्टिव टाइप के काम होते हैं। कितने लोग मेरे साथ अग्री कर पा रहे हैं? एक थम्स अप दे देंगे, रिएक्शन में आपके पास ऑप्शन है रिएक्ट करने का, एक थम्स अप दे देंगे मेरे साथ आप अग्री कर पा रहे हैं तो। यार ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तो स्टाफ को ट्रेन करते हैं और वो फिर थोड़े दिन में आप उसको सिखाओ भग जाता है दूसरी जगह, और फिर उसको नए स्टाफ को जीरो से शुरू करना। तो मैं आज आपको फर्स्ट जो यूज केस इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हम किस तरह से ये जो एट्रीशन वाला प्रॉब्लम है एआई को यूज करके परमानेंटली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ाते हुए अपने डे टू डे लाइफ को हम कैसे ईज आउट कर सकते हैं। ये पीपीटी मैंने वैसे तो तैयार की थी, पर हम इसको हैंड्स ऑन ही रखते हैं, हम इस पे पीपीटी वगैरह में ज्यादा नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, ये परमानेंटली ये अट्रीशन वाले प्रॉब्लम को कैसे छुटकारा पा सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपके साथ पहले एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, जो रियल यूज केस है पहले वो शो करता हूँ और फिर हम डिस्कशन करेंगे। एक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। आपने हम जब ऑडिट शुरू करते हैं तो जब भी हम ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो आपको क्लाइंट की तरफ से पहले एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, और उसके बाद ऐसे 210 के हिसाब से हमको उनको एक एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ता है। अब थोड़े दिन पहले लास्ट ईयर इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने एक गाइडेंस नोट रिलीज किया जिसमें ये पाया गया कि मैक्सिमम फर्म्स जो है वो ये एंगेजमेंट लेटर भेज नहीं पाते। मल्टीपल असाइनमेंट से तो आपको, जैसे स्टैट और टैक्स ऑडिट है तो आपको अलग अलग एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ने ऑब्जर्व किया कि वो हो नहीं पाता है, राइट? क्योंकि ऑडिट सीजन के टाइम पे हम कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन वर्क पे नहीं काम कर पाते बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, कि स्टाफ अट्रीशन का प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग का प्रॉब्लम है। तो व्हाट इफ आई टेल यू कि इस तरह की चीजें हम ऑटोमेट कर सकते हैं। हम बोलते हैं यार ये सब सिंपल चीजें हैं, मशीन को बोलते हैं भाई तुम कर लो, मेरे मेरे को ये सब में दिमाग नहीं लगाना, आप मेरे लिए करके दो। तो सबसे पहले मैं आपको एक शो करता हूँ कि एक आरपीए होता है क्या और हम कैसे इससे अपनी लाइफ को इजी आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक एंगेजमेंट लेटर ऑटोमेटिकली भेजने के लिए एक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन बनाकर मतलब शो कर रहा हूँ, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाएंगे और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले देखिए, जैसे मैंने इसको रन किया, ये कुछ क्वेश्चन मेरे को पूछेगा कि आप एक एंगेजमेंट लेटर का मेरे को डेट दे दीजिए। तो लेट अस से मैंने इसको डेट पे हाँ दिया 1 अक्टूबर 2025 लेट से,
इसने मेरे को पूछा भाई कंपनी का नाम क्या है, तो मैंने एबीसी लिमिटेड दे दिया। उसने पूछा एड्रेस क्या है, चलो मैंने कोलकाता डाल दिया। फाइनेंशियल ईयर क्या है, लेट से मैंने उसको 24-25 दे दिया। और फिर उसने आगे जाकर के पूछा भाई एजीएम कब हुई थी, तो मैंने 30 सितंबर 2025 दे दिया। मेंबर का नाम मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ उसके अंदर, और मैंने ये अपना नाम इसमें एंटर कर दिया। मेंबरशिप नंबर मैंने अपना डाल दिया, और फीस क्या होगा ये एंगेजमेंट लेटर में हमको लिखना पड़ता है। और ये किस ईमेल आईडी को डाला जाएगा, तो ये मैं अपना ही ईमेल आईडी इसमें एक लिख देता हूँ। और ये 9 क्वेश्चन टोटल इसने मेरे को पूछे, 9 क्वेश्चन इसने टोटल मुझको पूछा है, और मैंने 9 क्वेश्चन का इसको आंसर किया है। और मैं सिंपल अब एंटर प्लेस करूंगा, और ये देखिए मेरा हैंड्स बिल्कुल फ्री है। अब ये ऑटोमेटिकली सारा काम मशीन करेगा। एंगेजमेंट लेटर बनाने से लेकर के एंगेजमेंट लेटर भेजने तक का सारा काम ये मशीन खुद करके देगा। आप देखिए, ओहो एक सेकंड, इसमें क्या है, एक सेकंड, ऑफ एंगेजमेंट लेटर 1 अक्टूबर 2025 एंटिटी एबीसी लिमिटेड कोलकाता। ये मैंने एंटर किया, और ये देखिए आप अपने आप लेटर जनरेट हो गया, मेल खुल गया। मैं हैंड्स फ्री हूँ बिल्कुल, और ये अपने आप मेल लिखा जाएगा जिस मेल आईडी को मैंने डाला था। ये अपने आप मेल लिख रहा है, मेरे हैंड्स बिल्कुल फ्री हैं, मशीन अपने आप काम कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप काम किया जा रहा है। ये लेटर ड्राफ्ट अपने आप कर रहा है मशीन, मेरे हैंड्स बिल्कुल फ्री हैं। ये अपने आप एंगेजमेंट लेटर को ढूंढेगा भी। आप देख सकते हैं आज का करंट डेट और टाइम इसमें ऑलरेडी ओपन है एंगेजमेंट लेटर के अंदर, और ये अपने आप इसको सर्च करेगा, अपने आप इसको देखेगा, अपने आप इसको भेजेगा। और मैंने लास्ट में इसमें रखा है कि मेरे को दिखा दो एक बार, सब सही है तो मैं इसको मैनुअली सेंड करना चाहूंगा, ऐसा मैंने ये मशीन को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सब हो चुका है, और अब यहाँ पर ये मेरे को एक मैसेज देगा कि ईमेल ऑलरेडी सेंड हो चुका है सक्सेसफुली, और ये मेरा मशीन ने सारा काम कर दिया। अब मैं आपको अगर ये शो भी करूं, अगर मैं ये ओपन करके आपको शो भी करूं, तो ये सारा काम मशीन ने ऑटोमेटिकली अपने आप कर दिया है। मैं आपको मेल में जा करके शो करता हूँ कि ये आप सेंड पे जा करके देखिए, तो ये अभी एंगेजमेंट लेटर ऑलरेडी इस डेट पे अभी 0 मिनट्स पहले भेज दिया गया है। और आप एंगेजमेंट लेटर को ओपन करके भी देखें तो इसमें 1 अक्टूबर की डेट है जो मैंने वहां पर डाला था, और ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ एडिट होकर के, मेरा नाम वाम सारा एडिट होकर के प्रॉपरली ड्राफ्ट होकर के ये चला गया है। तो ये जो मैंने अभी आपको टूल बना करके ये जो शो किया, ये जो टूल है, इसे हम एआई की और ये टेक की भाषा में आरपीए कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज आरपीए, विच इज अ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। दिस इज कॉल्ड एज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इज दिस द टूल? जी सर ये टूल है। व्हाट इज द लिंक ऑफ दिस टूल, वेयर वी विल गेट दिस? सर ये मैंने बनाया है, मैं शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने बनाया है, इसको मैं शेयर कर दूंगा। पहले हम ये बता देते हैं कि आप ऐसे टूल्स कैसे बना सकते हैं। मेरा फर्स्ट फोकस है कि I want to teach you how we can first make these tools, and if you need these tools we can share it। हालांकि मतलब 1 आवर के अंदर ये थोड़ा बताना मुश्किल होता है। मतलब जनरली हम जब हैंड्स ऑन करते हैं इसके अंदर तो 3 to 4 आवर्स हमको लगता है, और फिजिकल मोड में हम जब इसको समझाते हैं तो ये बहुत ईजी होता है इसको करना। बट मैं ये शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। एंड इज द एंगेजमेंट लेटर नीड ऑन द लेटर हेड? हाँ आप लेटर हेड पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेटर हेड पे भी आप इसको इशू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो फॉर्मेट एक्चुअली क्या है, आप जैसा इसको इनपुट टेम्पलेट एक सजा करके दोगे ये उसी फॉर्मेट में बना देगा। मैंने इसको क्या किया है, आईसीए का एक फॉर्मेट था, उसी फॉर्मेट से कॉपी पेस्ट करके रेडीमेड बनाया है, कोई पर्टिकुलर लेटर हेड इसको नहीं दिए। ठीक है सर। जी, तो मैं अब आपको ये बताता हूँ कि हाउ वी विल मेक दिस। सर एक बार हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी दीजिए। सर मैं आपको देखिए, आप चाहे तो मेरे साथ इसको कर सकते हैं, बट बाकी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ऑफकोर्स ये कैसे किया जाता है। और आप इसको करके देख सकते हैं, उसके बाद कोई क्वेरी होगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं। आप सिर्फ ये नहीं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये इस तरह के आरपीएस आप अपने ऑफिस में बना कैसे सकते हैं। फर्स्ट हम इस पे डिस्कशन करते हैं। सर मैं इस तरह की सिंपल आरपीएस के लिए बहुत ही सिंपल टूल है पाइथन। अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको अभी गाइड भी करते हुए चलता हूँ।
पाइथन एक सिंपल टूल है। आप ये वाला जो है ये पाइथन का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। मोस्ट ऑफ यू वुड बी अ 64 बिट यूजर, तो आप पाइथन को इसमें डॉट डाउनलोड कर लीजिए। सर पाइथन बिल्कुल टैली की तरह होता है, आप जैसे टैली डाउनलोड करते हैं वैसे इस वेबसाइट से डाल करके बिल्कुल इसको डाउनलोड करना पड़ता है। मजे की बात है सर, टैली में तो पैसा लगता है, पाइथन बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, 100% फ्री सॉफ्टवेयर है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब पाइथन सर क्या है मैं आपको बताता हूँ। पाइथन देसी भाषा में बोले तो रजनी सर की तरह है, ये सारे काम कर सकता है, आपको जो बोलो ये कर सकता है। मतलब मैं जब इसको शुरू में ट्राई कर रहा था, मैंने इसको बोला तू यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर सकता है, कहता है मैं कर सकता हूँ। तू पीडीएफ पढ़ सकता है, कहता है मैं पढ़ सकता हूँ। तू पीडीएफ पढ़ के उसमें से कोई टेक्स्ट निकाल के वर्ड बना सकता है, कहता है मैं ये कर सकता हूँ। आप इसको जो बोलो ये कर सकता है, पर इसमें एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि पाइथन को कुछ अपनी भाषा समझ आती है जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, प्रोग्रामिंग कोड कहते हैं। वो उसको अपनी चाइनीज भाषा कुछ समझ में आती है और वो चाइनीज भाषा मुझे नहीं आती है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये एआई आने से दूर हो गया, क्योंकि मुझे चाइनीज भाषा नहीं भी आती है ना, अगर इनकी पाइथन की भाषा अगर मुझको नहीं भी आती तो मैं सिर्फ मुझको कोड लिखना आना चाहिए चैट जीपीटी के ऊपर, बाकी एक काम सारा चैट जीपीटी खुद करके देगा। मुझे कोडिंग आने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी जो डीप सीक एआई निकला है, अगर आपने इसका नाम सुना है, तो डीप सीक एआई तो ये कह रहा है कि ये 99% ऑफ द कोडर्स जो दुनिया में उससे बेटर कोडिंग ये करके दे देता है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्लियर होना चाहिए आरपीए बनाने के लिए आपको क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 स्टेप इज कि आपको स्टेप वाइज फ्लो चार्ट बनाना है कि मेरे को क्या काम होना चाहिए। मैंने ये बना रखा है, देखिए मैं अगर एंगेजमेंट लेटर भेज रहा हूँ क्लाइंट को तो मैं चैट जीपीटी में जाके ये कोड लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। तो कोड कैसे लिखते हैं कि आपको एक पाइथन प्रोग्रामर है आपकी तरह बिहेव करना है और आपको एंगेजमेंट लेटर को भेजने के प्रोसेस को ऑटोमेट करना है। और आप सबसे पहले क्या करेंगे मैं आपको ये सिखाता हूँ। एक टेम्पलेट उठाएंगे, जो इंस्टीट्यूट का टेम्पलेट है मैं वही उठाया है मैंने उसको, जस्ट मैं आपको शो कर देता हूँ। ये जो इंस्टीट्यूट का टेम्पलेट है एंगेजमेंट लेटर का, ये इंस्टीट्यूट का टेम्पलेट ही मैंने उठाया है। और इसमें जो जो भी वेरिएबल्स है, जो चीजें बार बार हर क्लाइंट के साथ चेंज होते जाएंगे, उसको ना मेरे को सीरियली नंबर करना है। आप है ना मेरे साथ, आप समझ पा रहे हैं, मेरे को बस बताते जाइएगा, कोई क्वेरी है तो बीच में आप बता दीजिएगा। तो जो भी चीज है, जैसे ये डेट है, एंगेजमेंट लेटर किस डेट को दिया जा रहा है, कंपनी का नाम है, एड्रेस है, तो ये सारी चीजें जो बार बार चेंज होती जाएंगी मैं उसको सीरियली नंबर कर देता हूँ। जैसे ये कंपनी का नाम है, अब कंपनी का नाम जहां जहां आएगा मैं उसको ये आंसर टू आंसर टू आंसर टू आंसर टू ऐसे लिख दूंगा। पहला काम, कोई भी आरपीए बनाने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने वर्ड फाइल को एडिट करना है तो वर्ड फाइल बेसिक टेम्पलेट उठाना है इंस्टीट्यूट का कोई भी। उसके बाद उसमें जो जो भी हर बार चेंज होने वाली चीजें हैं उसको आपको सीरियली नंबर कर देना है, 1 2 3 4। आप 1 सर 1 क्वेश्चन 1 कैसे भी इसको नंबर कर सकते हैं, सीरियली नंबर कर दीजिए। उसके बाद आप जब पाइथन को बोल रहे हैं तो आप पाइथन को बोलिए कि मेरे को ना ये क्वेश्चन पूछना है। जो भी चीजें इसमें वेरिएबल्स है 1 2 3 वो क्वेश्चन के फॉर्म में आप यूजर को पूछ लीजिए कि एंगेजमेंट लेटर का डेट क्या है, नेम ऑफ द एंटिटी क्या है, एड्रेस क्या है, ईयर क्या है, जो भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं आप उसको पूछ लेंगे। दिस इज लाइक मेल मर्ज सेंडिंग मेल इज ऑटोमेटेड थ्रू आरपीए। यस, नॉट ओनली सर सेंडिंग ईमेल बट ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पर्टिकुलर एंगेजमेंट लेटर। एक फॉर्मेट से अगर मेरे को 50 एंगेजमेंट लेटर बनाना है तो मैं 50 एंगेजमेंट लेटर उस आरपीए से बना सकता हूँ और वो मेल भी अपने आप ही एक एक करके कर देगा उसको, राइट। तो इसमें जो भी वेरिएबल्स हैं ये क्वेश्चन के फॉर्म में मेरे को पहले पूछेगा। उसके बाद जो इनपुट फाइल है वो जो भी लोकेशन है वो आपको वहां से उठाना है। मैं चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्ट किया कि आप पाइथन फाइल को यहाँ से रिप्लेस कर उठा लेना एक्सक्यूज मी। उसके बाद आप जो आंसर 1 है उसको जो यूजर ने इसका आंसर दिया होगा उससे रिप्लेस कर देना, ठीक है। और आउटपुट फाइल को आप एक पर्टिकुलर लोकेशन में सेव कर देना। मतलब मैं उसको ये बोल रहा हूँ पाइथन को पहले आपको ये समझाना होता है कि उसको करना क्या है। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू ये वाला इनपुट फाइल उठाना, 9 क्वेश्चन पहले यूजर से पूछना और आंसर 1 को आंसर 1 जो यूजर एक्चुअल में आंसर 1 देगा उसको ये टेम्पलेट के साथ आंसर 1 में रिप्लेस कर देना। तो जो यूजर आंसर देगा वहां पर उसके जगह आंसर 1 की जगह वो आंसर दे देना जो यूजर ने दिया। सिमिलरली 2 3 4 करके जो है आप उसको रिप्लेस करते जाना। उसके बाद आप जीमेल ओपन करना। ओपन करने के बाद कंपोज बटन पे क्लिक करना। अब एक्चुअली क्या होता है पाइथन के अंदर, मैं थोड़ा सा टेक्निकल आपको बता देता हूँ। पाइथन के अंदर एक सिलेनियम फंक्शन होता है जो है ना स्क्रीन पे लोकेट कर सकता है कि किधर कौन सा चीज कहाँ पे है। तो जीमेल ओपन करके कंपोज बटन क्लिक करेगा और फिर वो करने के बाद ये करेगा। ऐसे करके उसने पूरा स्टेप वाइज मैं आपको बना दिया कि आप ये स्टेप काम करेगा। और लास्ट में मैंने उसको कहा कि मैं वेट करूंगा
सो दैट यूजर चेक कर सके सब कुछ ठीक हुआ, और यूजर खुद चाहे तो यूजर, आप जब यूजर को सब ठीक लगेगा तो यूजर खुद वो मेल भेजेगा। आप यहाँ पर चाहे तो पाइथन को ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भैया नहीं पाइथन तुम खुद ही मेल को भेज देना। अब ये प्रॉम्प्ट जब मैंने बना लिया, इसमें प्रॉम्प्ट बनाना एक अच्छे से बहुत डिटेल्ड प्रॉम्प्ट बनाना बहुत जरूरी है। वंस यू क्रिएट दिस प्रॉम्प्ट, आप इस प्रॉम्प्ट को ले जाएंगे चैट जीपीटी के पास और आप चैट जीपीटी में इसको पेस्ट करेंगे। आप इस चैट जीपीटी में इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे, मैं चाहूँ तो ये प्रॉम्प्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वंस आपने जब ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया, जिसमें मैंने चैट जीपीटी को बोला भाई पाइथन को तू समझा, उसको ये काम करना है, तो ये देखिए जैसे ही उसको ये समझाया गया तो वो जो है मेरे को एक कोड लिख करके दे रहा है, ये पाइथन का पूरा कोड लिख करके दे रहा है मेरे को। और ये कोड अब मेरे को क्या करना है, जब ये पूरा लिख देगा तो ये कोड को सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, ये कोड को यहाँ से कॉपी करना है। सर मैं बता रहा हूँ पाइथन, अगर आपने नोटपैड अगर यूज किया है ना, तो पाइथन यूज करना उतना ही सिंपल है। ठीक है, कोड यहाँ से उठा लिया आपने, कॉपी कर लिया। उसके बाद जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे, जो मैंने शुरू में बताया, तो ये आइडल, ये सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है जो आप पाइथन को चलाने के लिए यूज कर सकते हैं, और ये नोटपैड चलाने जितना सिंपल है। ठीक है, तो आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे, नोटपैड बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप सिंपल न्यू फाइल पे क्रिएट करेंगे, जो कोड उसने पेस्ट किया है उसको, जो उसने बना के दिया उसको आप पेस्ट करेंगे, इस फाइल को आप सेव कर देंगे और फिर आप इसको रन करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप ये काम कर देंगे, जैसे ही आप ये काम कर देंगे, जैसे ही आप ये काम कर देंगे, पाइथन आपको जो है ये प्रोग्राम रन करके करना शुरू कर देगा। ऑफ कोर्स आपको जो भी आउटपुट है ना, वो एक बार में तो नहीं मिलेगा, कुछ इश्यूज आएंगे, कुछ एरर्स आएंगे। एरर्स होगा तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, जो दूसरा नोटपैड है वहां रिफ्लेक्ट करेगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप मेरी स्क्रीन को देखिए, जो भी कुछ एरर आएगा मेरे को यहाँ स्क्रीनशॉट लेना है उसका, और मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा और स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर दूंगा और बोलेगा देखो भाई मेरे को ये इशू आ रहा है, तुम इस कोड में ठीक ठाक करो, इसको चेंज करो। तो ये पाइथन अपने आप इस कोड में उस इश्यू के हिसाब से चेंजेस कर देगा और फिर मेरे को एक नया कोड बना करके दे देगा। ठीक है, तो वो जब कोड आपका बन जाएगा, अल्टीमेटली 2 या 3 या 4 आइटरेशन के अंदर आपको ये काम मिल जाएगा। ऑफकोर्स आप थोड़ा सा इसमें हो सकता है, अगर आप एकदम ही नहीं हो तो आपको हो सकता है शुरू में 1 बार 2 बार दिक्कत आए, बट बिलीव में आप जब एक बार इससे कंफर्टेबल हो जाओगे, आप इससे नेक्स्ट लेवल आरपीएस बना सकते हो आपके ऑफिस के लिए। मतलब क्लाइंट को आईटीआरबी कंप्यूटेशन भेजने का आरपीए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि द फर्स्ट टाइम इट दिस प्रॉब्लम हैड कम टू मी कि यार यू नो हमारे ऑफिस में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि क्लाइंट को तुम 50 बार कंप्यूटेशन आईटीआरबी भेज दो, 51st टाइम अगर उसको बैंक मांगेगा वो हमसे ही लेगा, और उसको ऐसा ही चाहिए कि साहब आप अभी दे दो वरना पता नहीं क्या हो जाएगा, वो पता नहीं लोन मेरा कैंसिल कर देगा या कुछ भाग जाएगा उसके घर से या कुछ हो जाएगा, आप मेरे को अभी बस मेरे को कंप्यूटेशन और आईटीआरबी भेज दो। तो इसका एक आरपीए बना लिया जो आपके, जैसे मैंने कॉम्प्यूटेक्स के लिए बनाया कि आपका कॉम्प्यूटेक्स वो ओपन करेगा, वो ओपन करके जो रिस्पेक्टिव क्लाइंट है वो सर्च करेगा, दोनों आईटीआरबी कंप्यूटेशन सेव करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको मेल भी कर देगा। जब हम इस तरह के आरपीएस अपने डे टू डे लाइफ में लेंगे, और ऐसा आरपीए एक है, मतलब इस तरह के कई आरपीएस आप डॉक्यूमेंटेशन फील्ड पे बना सकते हैं। ये सारे आरपीएस जो बने हैं ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिपेंडेंस, ये वो आप इसमें बना करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे सबसे बेहतरीन काम ये होगा, मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया है अपने ऑफिस के अंदर, एक स्टाफ को मैंने एम्प्लॉय किया, उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ भी नहीं आता, और मेरा काम सिर्फ ये है कि उसको खाली इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। एंड आई हैव ट्राइड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट कि मैंने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जनरेशन का काम थोड़ा थोड़ा उससे स्टार्ट कराना यूजिंग दी आरपीएस दैट वी आर क्रिएटिंग। एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल है। आपको मैं बताऊं, एक आपको सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोगों को जो मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि स्टाफ की ट्रेनिंग में बड़ा टाइम चल जाता है, उसको सिखाना ये करो वो करो वो करो वो करो। इसमें ट्रेनिंग का कोई जरूरत नहीं, उसको आपको सिर्फ इस बेसिक इंस्ट्रक्शन देना, एक पेपर पे लिख के कि ये नाम में ये डाल देना, ये इसमें ये डाल देना, काम अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहला, और दूसरा बात, सबसे बड़ा बात यह है कि पहले अगर आप 50 एम्प्लॉय से काम करते थे तो अब आपको 5 एम्प्लॉय से काम निकल जाएगा, क्योंकि वो एफिशिएंट हो जाएगा ना, वो आपको एक आरपीए जनरेट करके देना है, वो खुद ये काम करके दे सकते हैं। तो ये आरपीएस जो है ये हमारे अब फर्म्स के लिए बनाना बहुत आसान हो गया है आफ्टर दी कमिंग ऑफ दिस पाइथन एंड मतलब ये चैट जीपीटी के आने के बाद। और बिकॉज कोड लिखना, अब चैट जीपीटी एक अच्छे कोडर, जो टॉप लेवल कोडर है, जिसने एजुकेशन किया ये वो किया है, उससे बेहतर कोड लिख करके आपको दे सकते हैं। और आप थोड़ा जब इसमें और आप इसमें करने लग जाएंगे तो आपको ये बहुत सिंप्लीफाइड लगेगा। और जो आइडल जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया, वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल नोटपैड जितना सिंपल है।
और उसमें कोई प्रॉब्लम आए सिंपल स्क्रीनशॉट खींच के डालिए, आपको वो भी नहीं करना, ठीक भी चैट जीपीटी खुद करके देगा। बताइए पहला यूज केस आई थिंक आपको ये क्लियर है। सर दिस इज मेल मर्ज, ये मैंने आई थिंक आंसर कर दिया था। इसमें और कुछ इशू है, कोई बात है करना है इसके अंदर डिस्कशन, और कैन वी मूव अहेड विद द आरपीए थिंक? चलिए सर आगे। ओके जी किसी का क्वेश्चन है जी? हाँ आगे चलिए, ठीक है। तो ये पहला मैंने आपको बताया कि आप पाइथन से कैसे आरपीए कर सकते हैं। हाउ आरपीए विल बी डन टू सेंड अ मेल टू क्लाइंट रिगार्डिंग आईटीआर एंड एक्नॉलेजमेंट। सर वो मैंने आपको बताया, आपको आपको ना फ्लो चार्ट बनाना होगा पहले कि आप पाइथन से कैसे काम करवाना चाहते हैं। पाइथन आपको ऐसा समझना है, पाइथन एक फर्स्ट ईयर आर्टिकल जैसा स्टूडेंट है। फर्स्ट ईयर आर्टिकल है, उसको आपको बहुत डिटेल में समझाना। जैसे मैंने आपको बताया प्रॉम्प्ट लिखना है कि आपको ना कॉम्प्यूटेक्स का ये लिंक ओपन करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, वहां पर क्लिक करना है, ऐसे जाना है वैसे जाना है, और वो करके फिर आप उसको स्टेप वाइज बता दो कि ये फाइल जो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड होगा, तो ये पीडीएफ खोलेगा, ये पीडीएफ को आप सेव कर दीजिए, सेव करने के लिए लोकेशन ये होगा। तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप जब गाइड कर देंगे तो पाइथन जो चैट जीपीटी है वो आपके लिए उस तरह का कोड लिख देगा, और वो कोड लिखने के बाद आप जो है उसको रन करेंगे तो पाइथन अपने आप वो काम कर देगा सर। ठीक है सर, ओके सर। हाँ थैंक्स, अरे थैंक्स सर। चलिए तो ये मैंने एक आपको बताया आरपीएस, आप बहुत फील्ड पे डेवलप कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फर्स्ट यूज केस मेरा इससे रिलेटेड था। सेकंड यूज केस, आई होप आप लोग क्योंकि इतना सेशंस वगैरह कर रहे हैं, आपने सीए जीपीटी को तो यूज किया ही होगा ऑडिटिंग फंक्शंस के लिए। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप जो ये डॉक्यूमेंटेशन है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, और डे टू डे एक्टिविटीज में जो रूल बेस्ड रेपिटेटिव टास्क है, पूरे से पूरे टास्क को करने के लिए आप जो है आरपीएस का बना सकते हैं। आप जो प्रॉब्लम बोलो उसका एक आरपीए बन सकता है। दो मोड पे बनता है, एक होता है मैनुअल, मतलब एक होता है सेमी ऑटोमेटिक, एक होता है फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक में आपको खाली वो रन करना है, सारा काम सॉफ्टवेयर खुद करेगा। सेमी ऑटोमेटिक में बस एक आदमी है जिसको बेसिक स्किल्स है, वो आपको सारा काम वो करके दे देगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सबने जो है सीए जीपीटी यूज किया होगा। ये सब तो बेसिक सी चीजें हैं कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज चेक करना है। क्या शुड वी डू अ हैंड्स ऑन दैट, और आई थिंक मतलब ठीक है। सर सीए जीपीटी के अंदर, मैं 2 मिनट लगेगा, मैं एक बार शो कर देता हूँ। सीए जीपीटी के अंदर ये एक बहुत अच्छा टूल है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो रिव्यू बोर्ड की तरफ से बनाया गया है। ये आपके ना शो वन एग्जांपल जी, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड है, आप मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सीए जीपीटी में आप जब जाएंगे सर, ये जो सीए जीपीटी में आप जाएंगे तो आप यहाँ पर मेंबरशिप नंबर अपना डालेंगे, आपको ओटीपी एक आएगा। सर बहुत बेहतरीन टूल है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर आप सीए जीपीटी यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब आप कुछ मिस कर रहे हैं, इसको जरूर आपने यूज करना चाहिए, और आपकी प्रैक्टिस के अंदर भी काफी काम ये आपको हेल्प कर देगा ईज आउट करने के लिए। तो ये सीए जीपीटी मैंने ओपन किया, इसके अंदर ये देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड, ये एक टूल है इनका। इसके अंदर क्या है ना, अब एक प्रॉब्लम क्या आता है आजकल, आपको पता है सभी एंटिटीज को अकाउंटिंग पॉलिसीज अपने बैलेंस शीट पीएल के साथ लगा करके भेजना होता है। तो अब मेरे को ना कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करना है, तो दिक्कत क्या होता है, एक तो इतना पढ़ने का वो नहीं होता, और दूसरा उसमें कुछ चेंज आ गया, अपडेशन हो गया, कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, ये दिक्कत होता है। तो मैं ये काम ना चैट जीपीटी से करा लेता हूँ। मतलब मैंने कहा कि यार नॉट चैट जीपीटी, सीए जीपीटी का इस बोर्ड से करा देता हूँ कि भाई ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी को रिव्यू व्यू करने का काम है तू ही कर दे मेरे लिए, मेरे को इतना इसमें दिमाग नहीं लगाना। तो मैं यहाँ पर एक जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक नोट्स टू अकाउंट्स वाला जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है ये ओपन कर रखा है, और एक ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख रखा है चैट जीपीटी के लिए। यहाँ पर मैंने इसका एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है। ये मैंने इसके लिए एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है कि आप कृपया करके इसको ओपन करें, ये जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है, मैं इसको शो भी कर देता हूँ। और मैं इसमें ना जानबूझ के गलती डाला है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर ना ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज ऐसा आप लोग लगाते होंगे कॉर्पोरेट्स, और अब तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में भी लगने लगी है। इसके अंदर ना जानबूझ के मैंने एक गलती डाला है। ये देखिए इन्वेंट्रीज के अंदर ना मैंने वैल्यूएशन मेथड लिखा है लीफो, जो कि AS2 के हिसाब से अलाउड नहीं है। ठीक है ना, तो एएस इंडेस के हिसाब से ये अलाउड नहीं है, इंडेस एएस के हिसाब से वेटेड एवरेज और फीफो अलाउड है।
ठीक है। तो अब नियम से जब ये इवेल्युएट कर रहा है तो ये मेरे को बता देना चाहिए कि ये इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आपका गलत है, इसको ठीक करिए, और भी कुछ कुछ सजेशन इसको मेरे को देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया, सर साउंड इज नॉट कमिंग, अरे सर ऑडियो आ रहा है बाकी को, आ रहा है ना, गुड, Yes, Prabhu, you are ओके इट्स completely ऑडियो, हाँ audible. ठीक है सर। सर अमित सर, अमित सर आप एक बार अपने एंड पे चेक करिए सर, एवरीवन एल्स इज सेइंग ऑडिबल, ठीक है। तो सर मैं ना क्या कर रहा हूँ, मेरे को ये जो CAGPT है ये सब चेक करके बता देगा कि भैया मैंने इसको बोला कि ये काम करो, आप ये अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूज करो और देखो कि यार ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडिया से तो इंडिया के हिसाब से है कि नहीं, और कुछ करेक्शन चाहिए तो मेरे को पढ़ के बताओ ठीक है कि नहीं। और मैंने ये एंटर कर दिया। अब मैं ChatGPT को देखो, एक तो गलती मैंने जानबूझ के डाली थी इसमें कि AS2 में लिफो मेथड गलत है, फीफो या वेटेड एवरेज होना चाहिए, तो ये तो एक मेरे को बताएगा। उसके अलावा भी ये कुछ कुछ और है, तो ये मेरे को सजेस्ट करके बताएगा कि क्या है क्या नहीं। अब ये देखिए इसने एक इवेल्यूएशन किया है कि बेसिक्स जो है पहला आपने सही डाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप अगर ये लिख देते कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने यूज किया एज पर नोटिफाइड बाय द कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल, तो ये ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, उनका एक सजेशन है। फिर उसके बाद आपने ये कहा कि AS10 का कंप्लायंस हो रहा है PPE के अंदर, ठीक है। डेप्रिसिएशन मेथड्स भी सही है आपके हिसाब से, बिल्कुल सही है। इम्पेयरमेंट में भी इसने बताया, ठीक है, सब कुछ 20 AS28 के हिसाब से, लीजेस के हिसाब से भी है, AS19 के हिसाब से है, फॉरेन करेंसी के हिसाब से जो है ये है। लेकिन एक जगह इसमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत है कि आपने अनरियलाइज एक्सचेंज का कैसे ट्रीट किया है। ये देखिए, ये मेन जो मेरा प्रॉब्लम था, इन्वेंट्री, यहाँ पर यूज ऑफ LIFO मेथड इज नॉट अलाउड अंडर AS2, करेक्शन चेंज टू FIFO और वेटेड एवरेज, ये भी इसने बता दिया। ये आपने एक तो गलत किया कि ये LIFO वेटेड एवरेज लगा रखा है, ये LIFO लगा रखा है, ये चेंज करके आपको FIFO या वेटेड एवरेज लगाना चाहिए, तो ये भी मेरे को ये बता देता है। उसके अलावा ये सारे सारे AS के अंदर ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में भी इसने कहा कि आपने सिर्फ लिखा है कॉस्ट विदाउट मेंशनिंग इम्पेयरमेंट कंसिडरेशन, जो कि AS13 के हिसाब से नहीं, आपको ये भी चीज देनी होगी एज अ पॉलिसी ऑन इम्पेयरमेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत अच्छी से सारी आपके AS के अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रखा है, वो सारा आपको सजेस्ट करके बता देते हैं कि यहाँ यहाँ आपको चेंजेस करने की जरूरत है, यहाँ यहाँ आपको ठीक करने की जरूरत है। सर छोटी से छोटी चीजें हम जो, sir, tell them to assist us, we should not rely 100%, we should review it, yes, absolutely sir, absolutely हम इसको 100% CAGPT पे रिलाई, ऑफ कोर्स ये तो इम्प्लाइड है सर, AI ऐसा नहीं है गलती नहीं करता, AI गलतियां करता है। ठीक है, अभी इनफैक्ट डीप सीक की जो बातें हो रही थी, मैं डीप सीक पे ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, मैं उसको कह रहा था कि भैया आप इंडियन स्टेट्स के नाम बताइए, तो वो जो है इंडियन स्टेट के नाम नहीं बताता सर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए वो जो जो मतलब मेरे को तो विश्वास नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं वो कंट्री स्पेसिफिक, आप उसको पूछ के देखिए कुछ भी ऐसा अगेंस्ट द चाइना, आप उससे पूछ करके देखिए तो यू विल फाइंड सब उल्टा उल्टा आंसर्स उसके अंदर। सो खैर मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि AI कंप्लीटली अभी रिलायबल नहीं है। ऑफ कोर्स यू हैव टू रिव्यू दिस वंस, यू कैन नॉट ब्लाइंडली रिलाई ऑन दिस, ये जो कह रहा है। अब ऑफ कोर्स मेरे को पहले से पता था कि इन्वेंट्री में ये जो चीज है LIFO और वेटेड एवरेज में है, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है जो रेज किया गया सर, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि आपको ऑफ कोर्स एक बार तो रिव्यू इसको करना होगा। ठीक है सर, उसके बाद सर इसके अंदर आप इसमें डे टू डे एक्टिविटीज में कितना काम आई हैव टेकन, डायरेक्ट टैक्सेस GPT को अभी 2-3 दिन पहले आई हैड यूज, रेजिडेंशियल स्टेटस एक बंदे का निकालना था, ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस भी ये बढ़िया से कैलकुलेट करके देता है विद फॉर्मूला कि आपको कैसे इसने रेजिडेंशियल स्टेटस किया है, बिल्कुल निकाल करके दे देता है। आपको ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इसमें आपको कोई ऑडिट प्लान का डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, मैं इसका भी एक सैंपल आपको दिखा देता हूँ सर, ये ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का है। तो सर आपको ना मैं ये एक निकाल के दिखाता हूँ, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का बैलेंस शीट है मेरे पास, रिलायंस इंडस्ट्रीज का बैलेंस शीट है, और मैं इसको ये बोलूंगा कि अम, ये रहा, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट रिपोर्ट है। अब मैं इसको ये बोलूंगा कि सर इसके ना मेरे को आप यहाँ पर ऑडिट प्लान ड्राफ्ट करके दो, तो ये पूरा बना करके दे देगा, आपको सिर्फ वर्ड में कॉपी पेस्ट करना है और एक बार ऑफ कोर्स रिव्यू करके कॉपी पेस्ट करना है, और आपका ऑडिट प्लान प्रोग्राम वाला डॉक्यूमेंटेशन तैयार है। एंगेजमेंट लेटर बना करके देने बोले, एंगेजमेंट लेटर बना करके दे देगा आपको एज पर द फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये बहुत काम आसान करते हैं। CAGPT इज अ वेरी गुड टूल दैट आवर इंस्टीट्यूट हैज मेड, और ये कंप्लीटली फ्री है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, तो इसको बिल्कुल आप सभी ने यूज करना चाहिए। ये जो ऑडिट प्लान वाला है ये रहा, मैंने ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्लान के लिए ये प्रॉम्प्ट लिखा है कि ये इसका फाइनेंशियल्स है, आप इसके लिए ऑडिट
सॉरी, आप इसके लिए एक ऑडिट प्लान प्रोग्राम पूरा डेवलप करके दीजिए पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए, ऐसे 300 के हिसाब से, और ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको बिल्कुल तैयार करके दे देगा। सिर्फ वर्ड में आपको कॉपी पेस्ट करना है एक बार रिव्यू करने के बाद, और ये पूरा, और ऑफ कोर्स नेसेसरी एडिट आपको जो भी करना है एज पर योर प्रोफेशनल जजमेंट, ये आपको पूरा बना करके दे देगा। मल्टीपल यूज केसेस है, आप सिंपल सिंपल सी चीज है सर। हम कई बार क्या होता है, जब बैलेंस शीट बना लेते हैं एक्सेल के अंदर, फाइनेंशियल हो जाता है, या क्लाइंट भी जब हमको भेजता है, ठीक है, तो वो नोट नंबर कई बार टैली नहीं होता। आई एम गेटिंग इको साउंड सर, ओके ठीक है। और भी अगर किसी को ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज बताइएगा, ठीक है। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये देखिए, ये पूरा इसमें इन्होंने ऑडिट प्लान प्रोग्राम चौक आउट करके दे दिया है। सर छोटी छोटी चीजें, कई बार क्लाइंट के यहाँ से एक्सेल फाइल आता है, या मान लीजिए हमने किसी के क्लाइंट का फाइनेंशियल्स बनाया है, तो हम कई बार क्या होता है ना, नोट नंबर कंपैरिजन करना गलत हो जाता है कि नोट 1 पीछे नोट 1 से मैच हो रहा है कि नहीं, टोटल से मैच हो रहा है कि नहीं। आप चैट जीपीटी पे अपलोड करके उसको एक प्रॉम्प्ट दे दो कि सर ये टोटल लिमिटेड मिला दो, इसके हिसाब से वो ये मिला करके दे देगा। आप पिछले साल के बैलेंस शीट और इस साल की बैलेंस शीट अपलोड कर दो, आप बोलो सर ओपनिंग और क्लोजिंग को मिला दो, ये मिला करके आपको पूरा टेबल वाइज एनालिसिस दे देगा कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो ये कई सारी चीजें में आपको हेल्प कर सकता है आपके ऑफिस वर्क से रिलेटेड। तो दिस वाज वन ऑफ द यूज केसेस जहां पर आप सीए जीपीटी को यूज कर सकते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। कोई डॉक्यूमेंट आपको चेकिंग करवाना है, चैट जीपीटी बहुत अच्छे से वो काम करके दे सकता है। चलिए, थर्ड यूज केस की तरफ बढ़ते हैं सर। आई डोंट नो, मतलब टैली टीडीएल आप लोगों ने सुना है? एनीबॉडी हर्ड ऑफ दिस टैली टीडीएल, टैली डेवलपर लैंग्वेज? यस, यस, ओके सर, किसी ने यूज किया है सर? आपने यूज किया है? जिन्होंने सुना है यस क्या? नहीं, आपने यूज नहीं किया, ओके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर, कितना अच्छा टूल है टैली टीडीएल भी। वैसे आप चैट जीपीटी की मदद से बना सकते हैं, पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, टैली टीडीएल चैट जीपीटी से अभी उतना अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो पाइथन जैसे है, पाइथन दुनिया में बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और टैली जो है मेजर इंडिया में कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उतना पावरफुल अभी नहीं हुआ है टैली टीडीएल्स को लेकर के, पर कुछ बेहतरीन टीडीएल्स आपको मिल जाएंगे अगर आप, जैसे मैं ये प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ गिट हब, ठीक है ना, गिट हब। इसके अंदर एक सीए है, सीए रामानुजम सर, उनका एक बहुत अच्छा टीडीएल उन्होंने बना करके दिया। टीडीएल बेसिकली क्या होता है? टीडीएल इज टैली डेवलपर लैंग्वेज। उसमें क्या होता है, आप टैली को अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइज करके रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से टैली को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कस्टमाइज किया, मैं यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। तो आप क्या क्या करना होता है, जब भी आपको वो टैली टीडीएल आप जाएंगे, मैं आपको वो शो कर देता हूँ आप कहाँ से कर सकते हैं। गिट हब है, गिट हब, ये देखिए मेरा तो इसमें आ ही गया ऑलरेडी। तो गिट हब ये रामाजयम सर का है, ये यहाँ पर आप जो है, ये इसके अंदर ये टीडीएल टैली जो है यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं इससे। और डाउनलोड करने के बाद जो भी फोल्डर पे आपका रहेगा, आपको यहाँ पर हेल्प में जाना है, टीडीएल एंड एड ऑन में जाना है, और ये जो वर्जन है यहाँ पर क्लिक करके आपको वो फाइल पाथ जो भी है जहां पर आपका वो डाउनलोडेड फाइल है वहां पर ये सिलेक्ट करना है। तो ये टैली इनकॉर्पोरेट टीडीएल इसमें हो जाएगा। अब इसका यूज केसेस बहुत मैसिव है, अगर खासकर आप पाइथन से, मतलब अगर आपको आता है तो इसको आप बहुत तरीके से इस टीडीएल को इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं आपको ना बेसिक बताता हूँ, एक्सक्लूडिंग दी पाइथन। आप देखेंगे जैसे मैंने इसको एंटर किया, मैंने क्लाइंट का लॉगिन भी कर रखा है। आप ये देखिए, देयर इज अ टेक्स्ट सीए रिपोर्ट, यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ जाएगा, टेक्स्ट सीए ऑडिट रिपोर्ट। ये उन्होंने बेसिकली बनाया है रामाजयम सर ने, जो इनके कई सारी चीजें आपको ये देता है। उसमें एक फीचर में आपको ये बहुत बेहतरीन शो करता हूँ। एक तो ये है, देखिए सर, डेप्रिसिएशन चार्ट जो है, आप देखिए टैक्स के हिसाब से, जो टैक्सेशन होता है ना, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ एडिशन, उसके हिसाब से ये बना करके दे देता है। इनकम टैक्स के हिसाब से सर अभी ये 0 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके लेजर में 0% डेप्रिसिएशन डाला हुआ है। इसमें अगर आप रेट सही से डाल दोगे तो ये आपको इनकम टैक्स के हिसाब से बिल्कुल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दे देगा। पीरियड इसको हम चेंज कर देते हैं। अब मैं इसका आपको एक बहुत अच्छा यूज केस बताता हूँ इस टीडीएल का, ठीक है सर। अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इसमें सिंपल आपको जाना है। मैं एक नया एक्सेल फाइल खोल देता हूँ, मैं एक नया एक्सेल फाइल खोल देता हूँ यहाँ पर। ब्लैंक वर्कबुक में जाना है, डेटा में जाएंगे, गेट डेटा में जाना है, लेगेसी विजार्ड में जाकर के ये माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी में क्लिक करना है, और आप ये ओडीबीसी 9000 पे क्लिक करेंगे तो ये जो लेजर है जितने भी ये आ जाएंगे, जिसमें से एक ये जो लेजर बनाया है ये रामा सर ने हमारे ऑडिट सीए और ऑडिट फील्ड के लिए ही बनाया है। तो इसको हम जब सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो ये सारे लेजर्स ग्रुप वाइज मेरे को ओपनिंग
जो उसमें इनवर्ड आउटवर्ड ट्रांजैक्शन है वो सारा इसमें आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस सब इसके अंदर आ जाएगा। सर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जब हम भरते हैं तो उसके अंदर कुछ क्लॉजेस, जैसे वो लोन्स का जो हम भरते हैं वो अब डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। क्लॉज 44 अगर जो जीएसटी सप्लायर्स का डिटेल अगर इसमें जीएसटी प्रॉपरली डाला हुआ है तो यहीं से आप इसको आराम से बाइफरिकेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर नॉर्मली। ठीक है सर। अब मेन आपको मैं ये तो छोटी मोटी चीजें हो गई सर, अब मेन आपको मैं बताता हूँ इसको आप कहाँ यूज कर सकते हैं। सर अभी आपको पता होगा कि इस साल से इंस्टीट्यूट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए भी वो शेड्यूल 3 वाले फॉर्मेट लेकर के आ रहा है। इंस्टीट्यूट ने वो कर दिया है कि आपको नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए भी ना शेड्यूल 3 टाइप का फॉर्मेट बनाना है, उसको चेक करना है। ठीक है, तो हम किसी एंटिटी का फाइनेंशियल्स बना रहे हैं, ठीक है, ऑडिट कोई और कर रहा है, हम उसके फाइनेंशियल्स बना रहे हैं। अब सारा तो फॉर्मेट इस तरह का बनेगा, आप फाइनेंशियल्स मैं आपको दिखाता हूँ, वो सैंपल भी उन्होंने रिलीज कर रखा है। इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट जो है इस तरह का, इस फॉर्मेट में सारा बनेगा जो कि कंप्लीटली शेड्यूल 3 का है। अब दिक्कत ये है कि इसमें आपको ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन करना होगा, ट्रेड रिसीवेबल का कितना, सिक्योर्ड का कितना कितना, ये कितना। तो ये सर आप इसको इस फाइल से डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप, मैंने क्या किया है, मैंने इसको यहाँ पर जो है कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर किया कि अगर यहाँ पर संडी डेटर्स आपको दिखे तो इस कॉलम का, ये वाले कॉलम को टोटल कर देना। और सर टोटल करने के बाद ये रियल टाइम बेसिस पे चेंज होता है। मान लीजिए आपने टैली में कुछ चेंज किया, आपने टैली में कुछ एंट्री चेंज किया, यहां पर जाकर के डेटा में आपको रिफ्रेश ऑल क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली एक्सेल अपडेट होगा और ऑटोमेटिकली ये फाइल भी अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। और थोड़ा स्मार्टली अगर आप इसको बनाएंगे तो एक ही बार में आप कई फाइनेंशियल ईयर्स तक का प्लानिंग आप कर सकते हैं कि अगर फाइनेंशियल बनाना है डायरेक्ट टैली से तो आप इसको डायरेक्टली भी इसमें कर सकते हैं। इस तरह की चीजें आप इसमें कर सकती है, इतना बढ़िया टीडीएल बनाया हुआ है, राइट। तो आई होप मतलब ये यूज केस आपको क्लियर है। एक बार बता दीजिए यहाँ तक कोई डाउट है, सम पार्ट विच यू वांट मी टू रिपीट, कोई पार्ट में जो रिपीट करना चाहिए, टीडीएल्स को लेके कुछ दिक्कत है, कुछ है? ऑल क्लियर है तो एक थम्स अप दे दीजिए प्लीज, ऑल क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए। हाउ टू गेट दिस टीडीएल, सर मैं आपको बता देता हूँ, आप गिटहब में जाएंगे। सर वन मोर टाइम, हाउ टू जनरेट द एक्सेल डाटा फ्रॉम टीडीएल। जी सर बिल्कुल, एक बार बता देता हूँ हाउ टू गेट दिस टीडीएल। सर ये गिटहब में जाएंगे तो गिटहब में ये रामाजयम सीए सर है, इनका इनका अच्छा टीडीएल होता है। अब बाकी वन मोर टाइम शो भी कर देते होंगे सर, ये रामाजयम सर का आपको मिल जाएगा, ये बहुत अच्छे से इसमें ये मिल जाएगा, ये रहा ये फाइल, इसका ये फाइल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रामाजयम सर का फाइल है और ये फाइल मतलब इफ रिक्वायर्ड आई विल आल्सो शेयर, नॉट एन इशू। ये जो टीडीएल का फाइल है ये डाउनलोड, लेकिन दिक्कत ये है सर दिस सेशन आफ्टरवर्ड्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ये तो सर मैं नहीं बता सकता, ये तो आपको सर ही बताएंगे, राहुल सर ही बताएंगे। अच्छा मैं ये बोला था सर कि आप है ना, आप क्यों मैं गिटहब से करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ना टीडीएल में फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। देखिए लास्ट चेंज 4 मंथ पहले हुआ था, तो ये जैसे जैसे ना चीजें चेंज होते जा रही है, सीए प्रोफेशन के लिए ये बार बार टीडीएल्स को चेंज कर देते थे, यू नो, डायनामिक के लिए चेंज करते रहते, तो आप डायरेक्टली गिटहब से डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आपको वहां से अपडेटेड वर्जन मिलते रहेगा। ठीक है सर, कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना आपको, मैं फिर से एक बार शो कर देता हूँ। इसको भी इलस्ट्रेटिव लिस्ट में काम नहीं है, एक बार इसको बंद कर देता हूँ और मैं एक बार एक्सेल को खोलना है आपने, एक्सेल ओपन करना है, ब्लैंक वर्कबुक, नॉर्मली डेटा में जाना है, गेट डेटा में जाना है, लेगेसी विजार्ड में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी में जाना है और ये टैली ओडीबीसी 64 9000 कनेक्टर को यूज करके ओके करना है। और ये जो ऑडिट वाला लेजर है जो उन्होंने ऑडिट के लिए ही बनाया है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करके सिंपल नेक्स्ट 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 करके फिनिश कर देना है। वो पूछेगा कहाँ पर डेटा को डालो तो यहाँ पर करके ओके कर देना है, तो ये डेटा अपने आप बन करके आ जाएगा। सर रोशन सर एक बार बताएंगे, ठीक है ये क्लियर हो गया अभी? हाँ सर, ओके। तो इससे आप ना बहुत कुछ कर सकते हैं, एक बार आप इस टीडीएल को भी यूज करने लग जाएंगे ना, आपको पता चलेगा इस टीडीएल से बहुत कुछ एनालिसिस किया जा सकता है और बहुत प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है इसके, जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक ठीक है। टैली टीडीएल्स पे भी मैंने बात करी, इस पे भी बात करी। सर अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टूल दिखाता हूँ। कितनों ने आप में से सर गूगल एआई स्टूडियो यूज किया है? गूगल एआई स्टूडियो नहीं किया सर? बेहतरीन टूल है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मतलब आपको मैं बोलूं
आपको दिल खुश खाली इसी टूल को देख करके हो जाएगा, बाकी सब आप कहेंगे छोड़ो यार, बाकी सब आपको ये टूल देख करके दिल खुश हो जाएगा। सर लाइफ में जो प्रॉब्लम आई सामने एआई आपका बैठ के आपको सॉल्व करके देगा उसको। चलिए एक बार हैंड्स ऑन हो जाए इसके अंदर, बताइए सर। बाकी भी एक बार अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे, आई थिंक करीब 59-60 पार्टिसिपेंट्स है, एक बार आप हम सब या रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे भी बड़ा एनर्जी मिलेगा। और फिर हम ये बेहतरीन टूल है गूगल एआई स्टूडियो, उसको एक्सप्लोर करके आप देखेंगे कैसा टूल है ये। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल एआई लाइव बैठ करके आपके साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। जावेद, अरे जावेद सर आप तो करेंगे सर। यस प्लीज, चलिए वेरी गुड। चलिए हाँ, अब मेरे में भी एनर्जी आ गई आपके थम्स अप को देखकर और पार्टिसिपेशन को देख करके। आइए मेरे स्क्रीन आपको विजिबल है, गूगल एआई स्टूडियो यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। हैप्पी टू लर्न, बिल्कुल सर। मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ, मैं क्या प्रॉब्लम मेरा मेरे मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैं ना दिमाग में एक प्रॉब्लम में अटक गया हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि यार कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, मैं एक ऐसे ही रैंडम एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ कि ये जो अभी मैंने इम्पोर्ट किया है, अभी दिक्कत ये है कि मैं ये इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज भी ओपन कर लिया साथ में। ये जो टोटल है ये डिलीट कर देता हूं मैं एक बार। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं ना यहाँ पर आप देखिए, ये जो ये मैंने टैली टैली से एक्सट्रैक्ट किया था, अभी 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 जस्ट टैली जो यूज किया उससे से एक्सट्रैक्ट किया था। तो मेरा प्रॉब्लम ये है, इसके अंदर करीब कितने डेटा है, ये कमी है, ये तो मतलब नॉर्मली आप देखेंगे तो ये कम है, 452 ये कम में है। पर ऐसे हजारों रोज हो सकते हैं आपके किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के। अब मेरे को क्या चाहिए ना कि अब मैंने ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए फॉर्मेट बना रखा है ना, तो ये सन्डी क्रेडिटर मेरे जो है ये टोटल हो जाए। अगर मेरे को यहाँ पर ग्रुप में सन्डी क्रेडिटर सॉरी सन्डी डेटर दिख रहा है, तो ये डेटर वाले बैलेंस यहाँ पर सब जुड़ जाने चाहिए और ये टोटल यहाँ आ जाना चाहिए। अब मेरे को दो एक्सेल फाइल है, एक ये एक्सेल फाइल है और एक ये एक्सेल फाइल है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर ग्रुप जो है सन्डी डेटर है, तो इस ग्रुप का ये वाला जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस ये जुड़ करके यहाँ पर टोटल हो जाए, दूसरे एक्सेल फाइल में टोटल हो जाए। ठीक है, इससे मेरे दो तीन पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। अगर मेरा एक्सेल में कुछ चेंज होगा ऑटोमेटिकली, सॉरी टैली में कुछ चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली एक्सेल में वो चेंज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली मेरे ये वाले फाइनेंशियल्स में भी वो चेंज हो जाएगा। लेकिन मेरे को दिक्कत ये है कि मेरे को ये आता नहीं कैसे करना है। तो अब मैं बोलता हूँ यार मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊं, एआई है, एआई का जमाना है, एआई को पूछते हैं, एआई बताएगा मेरे को कैसे करना है। तो मैं आता हूँ इस बेहतरीन टूल पे जिसका नाम है गूगल स्टूडियो, गूगल एआई स्टूडियो। आप इसको सर्च करेंगे, ये लोगो है, ये पहला इसमें आपको मिलेगा। सर यहाँ पर आप रियल टाइम बेसिस पे इसके साथ चैट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रीम रियल टाइम पे जाऊंगा और मैं यहाँ पर एक पहले तो माइक्रोफोन एनेबल कर दूंगा, सो दैट अलाउ दिस टाइम, सो दैट मैं इसके साथ चैट कर सकूं। और साथ ही में वीडियो सोर्स में मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब मैं जो बातें करूंगा वो एआई के साथ करूंगा। आपको मेरी स्क्रीन की आवाज भी सुनाई देनी चाहिए। एक सेकंड, आई थिंक यहाँ ऑप्शन होता है मेरा डेस्कटॉप का ऑडियो शेयर करने का भी। जस्ट अ सेकंड, ठीक है, मुझे समझ में आ गया। ऑडियो सेटिंग्स। क्या आपको मेरी डेस्कटॉप की भी आवाज सुनाई दे रही है जो बातें हो रही है, जो एआई बोल रहा है? नहीं, मैं जो चैट पे है उनसे पूछ रहा था, नहीं सुन रहा है, ओके। एक सेकंड, ये हाँ सर डेस्कटॉप ऑडियो अनेबल करने का एक ऑप्शन होता है, शायद ये सर होस्ट के उसमें होता है, को होस्ट में नहीं है ये। सर एक बार है ना कंप्यूटर ऑडियो शेयर करने की भी ऑप्शन आप एनेबल कर दीजिए। ऑटोमेटिकली ज्वाइन प्लेस हमने इसमें, जी हाँ जावेद सर आप बता पाएंगे, हाँ बताइए ना। मैं अनम्यूट कर दूं क्या आपको, एक सेकंड। आप बताइए। मेरे पास अनम्यूट करने का भी ऑप्शन नहीं है। राहुल सर एक बार जावेद सर को आप वो कर दीजिए ना, अनम्यूट कर दीजिए, सो दैट ही कैन गाइड की डेस्कटॉप ऑडियो कैसे शेयर कर सकते हैं यहाँ पर।
I have asked him to unmute, so Javed sir can do that. सर इन स्क्रीन शेयर ऑन जूम क्लिक शेयर ऑडियो, अच्छा यहाँ पर शेयर साउंड। Javed sir, I think you can unmute. सर अभी अभी आ रहा है आपको? एक सेकंड, अभी मैं फिर से वो करता हूँ। हाय, आपको कुछ बोल के बताइए। जरूर, मैं आपको कुछ बोलकर बता सकता हूँ कुछ। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं किस बारे में बात करूं? ठीक है, चलिए तो हाँ ये ठीक आप है। सुन रहे हैं। हाँ हाँ, ये सर ये क्या कमाल की चीज है, मैं आपको गूगल एआई स्टूडियो में वापस लेके आता हूँ। ये आप जब इसमें आएंगे एक बार फिर वापस आते हैं, ठीक है, ये सेटिंग में अभी हो गया। अब मजा आएगा। अभी इसके अंदर मैं इसको बंद करता हूँ और हम गूगल एआई स्टूडियो पे जाएंगे। क्लिक करेंगे गूगल एआई स्टूडियो को, ठीक है। उसके बाद आपको ये स्ट्रीम रियल टाइम पे जाना है, ठीक है। माइक्रोफोन एनेबल करना है। पहले आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए अपना। मैंने यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर दिया और मैंने उसको बोला एंटायर स्क्रीन में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं माइक्रोफोन भी शेयर करूंगा। ओके, अच्छा, तो अब मैं जो बात करूंगा वो एआई के साथ बात करूंगा। आप सुनिएगा, मैं और एआई बात करेंगे, ठीक है ना। हाय, आपको मेरी स्क्रीन ठीक दिख है। रही है दोस्त? हाँ, मुझे आपकी स्क्रीन दिख रही है। ओके, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? जरूर, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बस देखो मेरे पास ना ये एक एक्सेल फाइल है। मैं यहाँ पर ना एक टोटल करना चाहता हूँ। मेरे पास ये दूसरी एक्सेल फाइल है जहां पर मैं क्या करता हूँ, ये जो सी कॉलम है, ये जो सी कॉलम है इसके अंदर अगर सन्ड्री डेटर लिखा हुआ आ रहा है ना, तो मुझे ये सबका टोटल जो एन, माफ करना, जो एम रो का टोटल है, एम रो का टोटल है, वो टोटल का बैलेंस चाहिए। अगर सी रो में सन्ड्री डेटर आ रहा है तो मुझे एम रो का जो टोटल है वो ये वाले एक्सेल फाइल में इस जगह पर सम मेरे को चाहिए। वो इस जगह पर मेरे को सम चाहिए। तुम मेरे को गाइड कर सकते हो ये कैसे होगा? जरूर, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम सबसे पहले आप पहली एक्सेल फाइल में उस सेल का चयन करें जहां आप योग को रखना चाहते हैं। इसके बाद दूसरी एक्सेल फाइल पर स्विच करें और उस सेल को कॉपी करें जिसमें एम कॉलम का टोटल है। अब पहली वाली एक्सेल फाइल पर वापस जाएं और उस सेल को पेस्ट कर दें जिसे आपने पहले चुना था। अब आपके पहली वाली फाइल में योग दिख जाएगा। नहीं नहीं दोस्त, आप मेरी बात ठीक से समझे नहीं। मैंने आपको बोला कि ये एक्सेल फाइल में अगर सी रो के अंदर सन्ड्री डेटर शब्द आ रहा है ना, तो फिर मुझे वो एम रो का टोटल यहां पर चाहिए, इस सेल के अंदर। अगर सी रो में, दूसरे एक्सेल फाइल में सी रो में सन्ड्री डेटा आ रहा है तो ही मुझे उसके एम रो का टोटल यहां पर ऐड करना है इस सिंगल सेल के अंदर। मैं समझ गया। तो आप चाहते हैं कि जब दूसरी एक्सेल फाइल के सी कॉलम में सन्ड्री डेटास लिखा हो तो उसी पंक्ति में एम कॉलम में जो वैल्यू है उसे पहली एक्सेल फाइल में किसी सेल में प्रदर्शित किया जाए। क्या ये सही है? जी, अभी आपने बिल्कुल सही समझा मेरी बात को। ठीक है, इस काम के लिए आपको एक्सेल में एक फॉर्मूला उपयोग करना होगा। क्या आप एक्सेल फॉर्मूला को लिखने और उपयोग करने में सहज हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपको अपनी पहली एक्सेल फाइल में उस सेल में जहां आप टोटल देखना चाहते हैं निम्न फॉर्मूला डालना होगा। इक्वल्स आई फेडर इंडेक्स, दूसरी एक्सेल फाइल का नाम एक्सएल एक्स एक्स शीट 1 ओ एम आम एम मैटी एच 1, दूसरी एक्सेल फाइल का नाम एक्सएल एस एक्स शीट 1 सी सी इक्वल्स सन्ड्री डेटर्स। ओके, अच्छा आप, फॉर्मूले में आपको दूसरी एक्सेल फाइल का नाम XLX की जगह अपनी दूसरी फाइल का नाम देना होगा और शीट 1 फुट की जगह अपनी शीट का नाम देना होगा। यदि आप चाहें तो मैं इस सूत्र को कॉपी करके आपके लिए चैट में पेस्ट कर सकता हूँ। हाँ आप ये कर देंगे तो बढ़िया होगा। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। आप इसे अपनी एक्सेल फाइल में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इक्वल्स आई फेयर, ध्यान x1 XLSX ट्री क्रेडिटर्स इस नंबर। ध्यान रखें कि आपको अपनी दूसरी एक्सेल फाइल का नाम बुक 1 फुट से बदलना होगा और शीट का नाम शीट 1 फुट से। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक और बोलता हूँ। मेरे को सम इफ यूज करके भी बता सकते हैं क्या आप ये कैसे होगा? सम इफ यूज करके बता सकते हैं कैसे हो सकता है? हाउ, मैं आपको सुमीफ का उपयोग करके भी बता सकता हूँ खुद। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं? जी, सम इफ का बता दो। जरूर,
यहाँ वो सूत्र है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। इक्वल्स शिमिफ बुक 1 XLSX शीट 1 सुनिए मिम दोस्त दोस्त दोस्त, मैं ना फॉर्मूला हाथ से नहीं लिखना चाहता, मैं वो सेल को डायरेक्टली सिलेक्ट करना चाहता हूँ समय लिख करके। तो मेरे को वो गाइड कर सकते हो कैसे कर सकते हैं ये? हाँ, जरूरत। एक्सेल में आप फॉर्मूला लिखते समय सीधे सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं तो आप माउस से उस सेल पर क्लिक कर सकते हैं जिसे आप शामिल करना चाहते हैं। एक्सेल उस सेल को फॉर्मूले में स्वतः जोड़ देगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका उदाहरण दिखाऊं? हाँ, मेरा स्क्रीन आपको दिख ही रहा है ना, आप मेरे को पूरा स्क्रीन में गाइड करो। ठीक है, सबसे पहले आप उस सेल पे क्लिक करें जहां आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। फिर फॉर्मूला बार में इक्वल्स स्यूमिफ टाइप करें। इसके बाद आपको उस रेंज का चयन करना होगा जिसमें आपके मापदंड हैं। आप दूसरी एक्सेल फाइल पे जाकर सी कॉलम की शुरुआत में क्लिक करें और एक मिनट एक कॉलम मिनट के मैं आखिर दूसरे एक मिनट मैं दूसरे कॉलम में गया, सी कॉलम में मैं चला गया। अब मेरे को क्या करना है? तो ओके, सो देयर इज सम, ये हैंग हो गया बीच में। पर मैंने ना लकीली, ये हमेशा ऐसा होता है जब आप इसको लाइव केस डेमोन्स्ट्रेट करने दो तो ये भाजी पाला कर देता है। तो मैंने है गूगल ना एआई एक्चुअली पहले स्टूडियो से को यूज रिकॉर्ड करने करके के लिए रखा था, मैं तो यहाँ वो पर प्ले कर जाऊंगा। देता हूँ देखिए एक बार। गूगल एआई स्टूडियो सर्च किया है, ये गूगल एआई स्टूडियो आ गया। आप जाएंगे ये वाले ऑप्शन में स्ट्रीम रियल टाइम, आप माइक्रोफोन अनेबल कर देंगे सो दैट आप एआई के साथ चैट कर सके। उसके बाद आप ये वीडियो सोर्स सिलेक्ट करके स्क्रीन एनेबल कर देंगे, ठीक है, सो दैट मैं एआई के साथ चैट कर सकूंगा। और अब मैं एआई के साथ चैट करके आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। तो ये स्क्रीन शेयर हो गया और मैं एंटायर स्क्रीन शेयर Okay, कर, it's क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? understood. Yes, I can hear you. ओके, क्या आप मेरे साथ हिंदी में बात कर पाएंगे प्लीज? क्या आप मेरे साथ हिंदी में बात कर पाएंगे प्लीज? Yes, I can speak with you in Hindi. चलिए, तो देखिए मेरे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये एक सेल है, मुझे यहाँ पे जो है ये वाले फाइल में आप देखें, ये जो सी कॉलम है इसके अंदर बहुत से रोज हैं, करीब करीब 432 रोज हैं। इसके अंदर जब भी ये सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस आएगा तो मैं चाहता हूं कि ये वाले रो का एम नंबर जो सेल है इसके बैलेंस को ऐड कर दिया जाए, और ये सारी एडिशन सिर्फ ये वाले फाइल के इस सेल में होना चाहिए। क्या आप मेरे को गाइड कर सकते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है? जरूरत। आपकी समस्या ये है कि आप एक एक्सेल शीट में कुछ सेल्स को जोड़ना चाहते हैं जहां उन सेल्स का डेटा दूसरी एक्सेल शीट से आता है। ये करने के लिए आप एक फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं जो दूसरी शीट के सेल्स को संदर्भित करता है। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप पहली शीट में किसी भी सेल में उस डेटा को प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे। आप ये करना चाहते हैं जब भी सन्डी डेटर्स का बैलेंस आए तो मैं चाहता हूं कि ये एम नंबर सेल में बैलेंस ऐड हो जाए और ये सारी एडिशन केवल इसी फाइल में होनी चाहिए। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस सेल में अन्य शीट में संडे डेटर्स कॉलम की सभी वैल्यू को जोड़ने के लिए आपको एसयूएमई फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊं? जी, जरूरत। इस सेल में आप निम्न सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। इक्वल्स सुमिफ शीट 1 सीसी सन्ड्री डेटर्स सुनिए शीट सुनिए 1 सुनिए एम। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं टाइप करके ये फॉर्मूला नहीं लिखना चाहता, मैं सिलेक्ट करके ये फॉर्मूला देना चाहता हूँ। तो आप मेरे को उस तरह से बताएं कि मैं कैसे सिलेक्ट करके ये फॉर्मूला डाल सकता हूँ। जरूरत। जब आप इस सेल में फॉर्मूला लिखना शुरू करेंगे तो आप पहले इक्वल्स टाइप करें, फिर सुमिफ लिखिए और ब्रैकेट शुरू करें। इसके बाद पहली शीट पे क्लिक करें और डेटा रेंज के रूप में सी कॉलम को सिलेक्ट करें, फिर एक कॉमा सेकंड टाइप एक सेकंड, करें और फिर आप मेरे को स्क्रीन को देख पा रहे हैं ना, एक तो मेरे को बताइए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। मैं सी कॉलम को आपने सिलेक्ट करने को कहा, तो देखिए मैं सी कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्या मैं सही कर रहा हूँ? हाँ, आप सही कर रहे हैं। सी कॉलम को पूरा सिलेक्ट करें। ठीक है, अब आगे बताएं क्या करना है। मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, सी कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा डालिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा में सन्ड्री डेटर्स लिखिए, फिर कॉमा लगाइए और पहली शीट के एम कॉलम को पूरा सिलेक्ट करें। एक सेकंड उसके बाद अब ब्रैकेट एक सेकंड, सन्ड्री डेटर्स मैंने लिखा,
अब मैं क्या करूं नेक्स्ट, मेरे को बताइए स्क्रीन देख के। जरूरत, आपने संडे डेटर्स इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया है। अब कॉमा डालें, फिर पहली शीट पे क्लिक करके एम कॉलम को पूरा सिलेक्ट कीजिए, फिर आखिर में ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर प्रेस करें। अच्छा, एम कॉलम को अब यहाँ इसी शीट पे सिलेक्ट करना है। नहीं, एम कॉलम को उसी शीट पे सिलेक्ट करना है जहां सी कॉलम सिलेक्ट किया है। हाँ वही तो, ये तो वही शीट है ना सर। हाँ, ये वही शीट है। अब एम कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस करें। ये मैंने एम कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लिया है, अब क्या करना है? आपने अब एम कॉलम सेलेक्ट कर लिया है तो ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दीजिए। मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। ओके ग्रेट, ये आ गया है यहाँ पे, थैंक यू सो मच। तो आप देखिए ये 73, 79, 278 डेटर का टोटल है। यहाँ पर भी अगर मैं बैलेंस शीट में आपको दिखाऊं तो ये टोटल मैच हो जाएगा। 73, 79, 278, 73, 79, 278, 73, 79, 278। तो मेरे को क्या है, सॉरी, एक प्रॉब्लम आया। और ये टूल अभी गूगल एआई स्टूडियो मतलब इनिशियल फेज के हिसाब से काफी अच्छा है, मैं आपको बताऊं, काफी काफी अच्छा है ये टूल। हाँ काफी काफी अच्छा है ये टूल, लेकिन ये अभी डेवलपिंग फेज में, और मैं आपको बताऊं आने वाले नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में बहुत गजब का टूल होने वाला है। तो आपके ऑफिस में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम, जी रोशन सर मैं आपको यही बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो एक्सेल में, आपको सिर्फ सोचना है कि ये प्रॉब्लम है यार, गूगल एआई स्टूडियो खोलो, उसको समझा दो अच्छे से कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप मेरे को स्क्रीन देख करके बताओ क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, कहाँ जाना है। वो आपको रियल टाइम बेसिस पे बैठ के समझा देगा कि ये फॉर्मूला यूज करना है, ये सिलेक्ट करना है, ये करना है, आप यहाँ ठीक नहीं कर रहे, वो ठीक करना है, ये करना है, ऐसे करना है। सो दिस इज द पावर ऑफ गूगल एआई स्टूडियो। ये मतलब आपका कंप्लीट पर्सनल असिस्टेंट है आपके लिए। और ये क्या कर सकता है, मैं आपको, ऑफ कोर्स आज लिमिटेड टाइम है तो आप इसको यूज करना स्टार्ट करिए। आप इसके पॉसिबिलिटीज को, एंडलेस पॉसिबिलिटीज है जो आप इसके साथ कर सकते हैं, और जितना आप इसको एक्सप्लोर करेंगे उतनी आपको इसके बारे में नई चीजें पता चले जाएंगी। सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अदर ऑप्शन इन गूगल एआई स्टूडियो? सर ये इसको ट्रेनिंग के लिए भी, आपके ऐप ट्रेनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। एपीआई की जो है बेसिकली ये दूसरे ऐप से अगर आपको डायरेक्टली इंटरैक्ट करना है तो ये उसके लिए यूज कर सकते हैं। बिगिनर लेवल पे आप ये सब में मत जाइए, आप ये जो स्ट्रीम रियल टाइम में इसको कीजिए, उस पे जाइए। जब धीरे धीरे आप जो है ट्रेन हो जाएंगे फिर इसमें आप ये करते जाइए। जैसे एपीआई की जो है बेसिकली आप दूसरे पाइथन के साथ, एपीआई बेसिकली मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ क्या होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, मतलब दो ऐप को आपस में अगर बात करना है, पाइथन को गूगल एआई स्टूडियो यूज करना है तो पाइथन को एपीआई की चाहिए होगा उसका, तो पाइथन अपने थ्रू फिर ये कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको जो पाइथन का यूज केस बताया, अगर आपको पाइथन से गूगल एआई स्टूडियो यूज करके कोई काम कराना है तो यहाँ पर आपको एपीआई की चाहिएगा उसके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। बेसिकली ये स्ट्रीम रियल टाइम अभी आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, आप इसको यूज करिए। धीरे धीरे आप जब इसको करेंगे तो आपको ऑफकोर्स और इसमें आपको करते चल जाएगा। आप इसे ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, बहुत सी चीजें आप इससे कर सकते हैं। बट इस टेक्नोलॉजी फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा इसकी चर्चा अभी नहीं है, बहुत कम लोगों ने इसको यूज किया है, बट ये वन ऑफ द रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज है जो अभी आई है। विद दिस आई थिंक मेरा सेशन टाइम हो गया है, so I would like to rest it. Sir, best use is used for AI tools. If you don't have any knowledge of any AI tool, Google AI Studio। हाँ हाँ हाँ, आपको कुछ भी नहीं, बिल्कुल सर, जावेद सर ने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू रोशन सर, मीन्स अ लॉट, थैंक यू सर। जावेद सर ने बिल्कुल सही कहा कि आपको कुछ भी नहीं आता तो ये गूगल एआई स्टूडियो यूज कर लीजिए, आपको सब कुछ सीखने में आ जाएगा। इट कैन ट्रेन यू एनीथिंग, मतलब आपको हाथ पकड़ के चलना सिखा देगा। ऑफ कोर्स बीच बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से आपका स्ट्रीम और चैटिंग बीच बीच में ब्रेक होगा, पर ठीक है ना, अभी विद टाइम ये 5-6 महीने में ये सब भी ठीक कर देगा। गूगल है, बड़ी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, ये सब ठीक हो जाएगा। पर आप इसको यूज करना स्टार्ट करिए सर, ये आपको मतलब एकदम बच्चे की तरह सब कुछ आपको एकदम समझा देगा टेक में। अगर आपको कुछ भी यूज नहीं है तो ये स्टूडियो को आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू अमित सर, थैंक यू सो मच। So friends, I have allowed everyone to unmute themselves. So in case they have any query regarding today's seminar, so they can ask from Prabhav in next 10 minutes. We have 5 to 10 minutes of time, so I've allowed everyone to unmute and ask questions.
सर कैन यू शेयर योर कॉन्टेक्ट? हाँ सर, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। So anybody has any questions regarding today's seminar or Hi, anything about Roshan it? अग्रवाल here. जी 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 रोशन सर। मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों को जैसे अभी तो हमने ये जो भी यूज किया एआई टूल्स, दैट इज बेसिकली फॉर डॉक्यूमेंट्स और एक्सेल्स एंड ऑल. What about the pictures and all? If we want, as a chartered accountant, we want some pictures to put some financial data. So where to go to get that? चैट जीपीटी सर, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ना, देखिए No, ये देखिए। ChatGPT is 4.0. Okay. What about 3.5? Will we get in that? नहीं सर, 3.5 right now is not giving you this feature. 4O is giving you, लेकिन 4O में सर अच्छी बात क्या है ना, आपको कुछ फ्री ट्रायल का प्रॉम्प्ट मिलते हैं। तो अगर Yeah. आपके पास मल्टीपल आईडीज है तो यू कैन यूज ब्रेक इट डाउन एंड यूज दैट। अगर आपको लिमिटेड यूज होता है तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा सर फाइनेंशियल फिगर्स और ग्राफ वगैरह एनालिसिस करना है तो पावर बीआई बहुत ही जबरदस्त टूल है। पावर बीआई यूज करने के लिए What is the name? पावर बीआई का यूज कर सकते हैं सर। Can you write in chat name? पावर बीआई, हाँ बिल्कुल सर। रियल टाइम बेसिस पे इंटरैक्टिव चार्ट्स बना करके दे देता है। Okay. Okay. Thank you. जी सर, थैंक यू सर। So with this, I think all the queries have been entertained. So as time is pressing, we have to conclude the session. थैंक यू So सर, थैंक यू अमित जी। So thank you so much, Prabhav, for your wonderful. Rahul, one minute. Can we expect this type of sessions again in future? Yeah, definitely. Sir, as you This know, is a that very fruitful session, and we expect more time because in 60 minutes you can't expect more. So we need at least 120 minutes to get more. Sure, sir. We'll take it, sir. But as you know that Vipka this time has come up with a new series of 8 sessions with 8 different topics, which will be on every Friday. So, sir, we request all the participants to kindly stay tuned on every Friday for 8 different sessions, which will be held at 5 p.m. to 6 p.m. and every Friday it will be done. And as you have mentioned that you need more time, so we'll be taking it forward that if we can extend the time frame. Thank you. So thank you Prabhav so much for your wonderful and insightful sessions. The session was really as at the very beginning, Sumit Bhai and our president Rahul Runta had mentioned that it should be so insightful that we can start it right from tomorrow. So I think I think that justice has been done. I think all the participants would agree to it that the session was so wonderful that I think all of us as a practicing chartered accountant can start it from tomorrow. Like I was always of the view that I don't know the codes, so how can I implement it? Because in order to get the work done from AI, also we need to know the codes. But as you have elaborated that the knowledge of code is not relevant, as well as the audio part was so really interesting. That we can speak in Hindi, we can speak in English, any language we prefer to, and we can get the proper feedback, just like as if we are talking to a friend. So, thank you, Prabhav, so much. Thank you, sir. So with this, we are wrapping up with the today's session. So we look forward for next session on Friday, which will be on 7th. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone for joining. Thank you.